Assalamu alaikum. My name is Hassan Fayaz, and today I'm going to show you the CP design which I have made. This is my complete design. This is my complete design of the three locations. These are the primary circuits which are connected together with the single power source. And these are the secondary circuits which will work when the backup circuit fails. The primary circuits, when working well, we don't need the second circuit and they aren't working. Secondary circuit are also called backup circuits. Backup circuit are needed when the primary circuit isn't working isn't working any longer. For example, if I show you, if the primary circuits fail to work, the secondary circuit started to work. Now the switch is working as a means to show the break in series connection between the bulbs. Because if there is any one connection broke, the whole circuit will not work. And due to that, there will be voltage differences in an op-amp as a ideal comparator which we have used, and it will energize the relay, and we will have the secondary circuit started working. We can see that it's working. Now in order to understand it better, we have to see it as per location. Now here we have the similar circuit. It's the single circuit that I have used to explain that what is really happening in the circuit, and other two location circuits are just working in the similar manner. They just are combined together with a single power source. Now here, as you can see, I have put switch here so that we can actually show and how it is breaking the circuits. And this is breaking the circuit, and due to which the second circuit started working. But if it is working properly, then we don't need a second circuit and it won't work. But how is it working? The comparator, the ideal comparator, how the voltage differences are working. Now this is the 5-volt source which we have used for the comparator, which is connected to the non-inverting terminal. And for the inverting terminal, we have used 30 volts, which is we are providing, but not exactly. If this circuit is working perfectly well, the voltage, as you can see, is we are getting 18.583 volt, and here we are getting the voltage of 0 volt. How is it happening? In ideal comparator, we have fed the value of 30 voltage. हमने 30 voltage की हमने एक वैल्यू दी हुई है जो मैक्सिमम वोल्टेज ये प्रोवाइड करेगा जब हमारे पास कंडीशन फुलफिल होगी. कंडीशन फुलफिल करने के लिए जैसे हमने सीखा हुआ भी है कि हम इसको नॉन इन्वर्टिंग को प्लस जो है नॉन इन्वर्टिंग उसको हमने V2 को नाम दिया और उसको V1 का, क्योंकि हमारे पास V1 में वोल्टेज 18.583 है जो बहुत ज़्यादा है 5 वोल्ट से. तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बनेगी V2 माइनस V1. तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू बनेगी जिसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा. आइडियल कंपैरेटर या तो मैक्सिमम आउटपुट देता है या तो मिनिमम देता है. हमने मैक्सिमम सेट किया 30, मिनिमम हमेशा ये 0 देगा. तो क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो माइनस में जा रही है, तो माइनस वैल्यू सेट करेंगे तो यकीनन ये मिनिमम वैल्यू देगा. मिनिमम वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 वोल्ट आ रही है. तो इट्स फुलफिलिंग द कंडीशन. बट इफ वी नॉट प्रोवाइडिंग इट, तो हमारे पास जो वोल्टेज अब जाएगा, क्योंकि अगर हम सीरीज सर्किट को अगर देखें तो ब्रेक कर देते तो अब हमारे पास जो वोल्टेज आएगा वो बहुत कम है, बहुत कम है. और अगर हम उसे कंपेयर करें 5 वोल्ट से तो बहुत कम है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगा जो है 30 वोल्ट. ये रिले हमारे पास यूज की हमने क्योंकि यहाँ जो 30 वोल्ट आ रहा होगा ये इसको एनर्जाइज करेगा रिले को, और इसकी वजह से हमारे पास ये ग्लो आएगा बल्ब, जैसा कि आप देख सकते हैं. अब इसी डिजाइन को मैंने तीन तीन लोकेशंस के लिए मैंने एक ही पावर सोर्स से जोड़ा है, जो कि रिक्वायरमेंट थी. एक ही पावर सोर्स से, जैसे कि एक डिजाइन है, इसी डिजाइन को बाकी ये जो दूसरी लोकेशन का और ये तीसरी लोकेशन का, उसी तरह हमने इसको ओप एम्प से जोड़ा हुआ है, और ये हमारे पास कनेक्टेड है रिले से और ये बल्ब से. यहाँ पे जो ग्राउंड इनको देना था वो मैंने सिंगल ग्राउंड कर दिया है, और जो यहाँ पे जो 5 वोल्ट हमें प्रोवाइड करना था कंपेयर वो भी सिंगल ये मैंने जोड़ दिया है. तो ये मेरा पूरा सर्किट है. अगर इसको हम दोबारा से देखना चाहें तो
अगर इसको दोबारा देखें तो ये हमारे पास ये सर्किट काम कर रहा है। और अगर हम प्राइमरी सर्किट काम करना छोड़ दें तो सेकेंडरी बल्ब हमारे काम करना शुरू हो जाए। इस सर्किट में जो एक प्रॉब्लम वो ये है कि अगर प्राइमरी सर्किट सब कम होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब फेल हो जाएंगे, सब फेल कर दें अगर हम प्राइमरी सर्किट, तभी हमारे पास सेकेंडरी सर्किट काम करेंगे, अगर सब फेल हो जाए तो। और अगर हम एक को भी ओपन कर देते हैं तो फिर बाकी दो लोकेशन के सेकेंडरी बल्ब काम नहीं करेंगे, जबकि ये दोनों ब्रेक है। तो ये प्रॉब्लम है जो मैं इसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास। इसकी वजह से कह सकते हैं। और मेरे पास जो फाइनल सर्किट बनता है वो ये बनता है, और मुझे उम्मीद है ये मतलब एक तरह से ये काम कर रहा है, एक तरह से कंडीशन फुलफिल करा। अगर मैं इसको सिंगल मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तब ये हमारे पास ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन क्योंकि जब मैंने इसको तीन सर्किट्स को जब जोड़ दिया तो फिर उसमें थोड़ी सी कनेक्शन वाइज थोड़ा फिर प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि यहाँ देखेंगे यहाँ बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ पे ये प्राइमरी सर्किट जब ब्रेक हुआ, ये मैंने ब्रेक शो किया स्विच से, तो हमारे पास ये सेकंड सर्किट काम करना शुरू कर दिया। और अगर ये ओपन हम इसको कर दें, हम इसको लेट अप कर दें, तो हमारे पास सेकेंडरी सर्किट काम नहीं करेगा। वही चीज़ यहीं पर शो हुई है, बस इन तीन लोकेशंस को मैंने एक ही पावर सोर्स से जोड़ दिया। So thank you for watching this video, and I hope that this will satisfy you, satisfy that the design is not the design is not complete, but at least it is working. Thank you very much.